Okay. Okay. So good afternoon, everybody. So I think we would start the meeting. People will continue to join. And I welcome all the participants. My name is Pankaj Malhotra and I'm in PGI Chandigarh. Today we are having a very good program and we will discuss about the bone health as well as about the kidney problem in multiple myeloma. But before going on to that, we will discuss the experience of one of our uh, uh, person who is having myeloma. So may I invite from Yodhas to share the experience of multiple myeloma? Good evening, Dr. Pankaj. I'm just telling that lady to join, Mrs. Bhavna. She will be joining in 2 minutes. She just left the meeting just now. She just left the meeting. I'll just tell her to join. Okay, okay. And Bhavna, please join. So just a minute, sir. She is, I think, trying to tell her to join. I don't know. She's joined. I think. अभी join करी थी, but she left it. कोई बात नहीं. आप ऐसे कर जब तक वो ज्वाइन करते हैं डॉक्टर गायत्री, आप थोड़ा सा if you want to share something with the patients. Sir, yes, I first of all welcome everybody to this meeting, which has been organized by the Image Society, and it is a privilege today for us to have Mrs. Bhavna Saxena. She is a multiple myeloma survivor, and she is here today with us. She's a wife of an army officer and was diagnosed in 2015 with multiple myeloma.
and she will share her experience with myeloma with all of us, how her journey has been. So I invite Bhavna to kindly unmute yourself and please share your journey. Bhavna, kindly unmute yourself, please. Bhavna. Bhavna, please unmute yourself and join. Okay. So there's a little bit of a hitch. I will just speak for a few minutes before she joins. I think she's having some problem with her mic. So in this myeloma awareness month, since हम सब ने पिछले 3 हफ्तों से देखा है कि हमने काफी कुछ सीखा है, because many wonderful talks regarding the latest treatment options in myeloma have been discussed. And today we are having another discussion which is going to be very important on the bone health and renal health in myeloma by some eminent doctors who are in this who are our panelists. And before I invite our speaker for today, what should I say? Because this is suddenly I didn't know this lady will not be able to join on time. So we just have to give me some time, give her a little time to join, please. Another 2 minutes. Pankaj, if you want, I will finish with the bone health. And Yes, ma'am. after I Yes. think that would be ask, good, sir. Bhavna to join so that you won't have Yeah. to feel so worried or upset about it. Don't worry. This is Yes, ma'am. Yeah. new era and the problems with new era. Yes, ma'am. What language do you think I should speak in, which will be comfortable to all? English Mixed, ma'am. हिंदी में बोलो कि mix करूं दोनों? Mix कर दीजिए मैम, mix कर मराठी दीजिए. तो अब मैं Ma'am, it will be English. It will be Hindi English. English, Hindi English दोनों आप बात ओके, कर तो सकते हैं, माइलोमा मैम. के बारे में तो सब लोगों ने काफी कुछ सुना है पिछले 3 हफ्तों में, और शायद आप लोगों की जानकारी मेरे से भी ज्यादा होगी माइलोमा में. लेकिन बोन एक ऐसा ऑर्गन है जो कई कैंसर्स में इन्वॉल्व होता है, बट मेजॉरिटी पेशेंट्स विद माइलोमा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर journey, either at diagnosis, during the time when the disease comes back, or towards the end of the treatment, bone involvement almost 80% of the patients में होता है. इसका मतलब है अगर 10 patients माइलोमा के होंगे तो कभी ना कभी bone का involvement एटलीस्ट 8 पेशेंट्स में तो जरूर होगा उनका माइलोमा लाइफ स्पैन के टाइम पे. और इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि इसके बारे में सब पेशेंट्स जाने और क्या करना चाहिए और डॉक्टर से क्या सवाल करने चाहिए वो भी आप लोगों को जानना जरूरी होता है. अगर हम देखें तो ऑलरेडी मैंने कहा है 80% को बोन का प्रॉब्लम्स होएगा. कौन सी बोन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है? जनरली ये बैक में होता है, रीढ़ की हड्डी में होता है, और ऑलमोस्ट 60% या 2/3 ऑफ द पेशेंट को जो बोन का प्रॉब्लम होएगा वो बैक में शुरू होएगा. लेकिन ये सिर्फ बैक पे ही डिफाइंड नहीं रहता है या लिमिटेड नहीं रहता है, बाकी हड्डियों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली इन द वेट बेयरिंग बोन्स, जैसे हिप बोन होता है जिसको हम पेल्विस कहते हैं. उसके अलावा ये रिब्स में भी हो सकता है, ये स्कल बोन में भी हो सकता है, और क्योंकि हैंड्स एंड लेग्स की लॉन्ग बोन्स होती हैं जो हर टाइम
हम इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ा सा भी ट्रोमा होए तो ये बोन्स अगर वीक होती है तो इनमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है माइलोमा में? प्रॉब्लम बोन की इसलिए होती है क्योंकि बोन में दो प्रकार के सेल्स रहते हैं। एक जो पुरानी बोन को खुदेड़ता है उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, और दूसरा जो नई बोन को बनाता है उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स में इन दोनों सेल्स का रेगुलेशन बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड रहता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जितना बोन को निकालता है, ऑस्टियोब्लास्ट उतना ही न्यू बोन्स को बनाता है। लेकिन माइलोमा में क्या होता है, वो जो प्लाज्मा सेल होता है वो सब गड़बड़ करता है और वो ऑस्टियोक्लास्ट को फेवर करता है और ऑस्टियोब्लास्ट को सप्रेस कर देता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा हो जाने की वजह से बोन उधड़ती जाती है लेकिन बनती नहीं है, और इसीलिए ज्यादा ब्रेकअप हो जाता है, बिल्डअप कम रहता है, और इसीलिए बोन को डैमेज हो सकता है। ये डैमेज दो प्रकार से होता है। एक अर्ली फोकल लीजन बोलते हैं, कई पेशेंट्स ने सुना होगा कि आपका फोकल लीजन है इसीलिए हम आपको ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है माइलोमा का। तो एक को फोकल लीजन बोलते हैं, और जब ये होल बन जाता है बोन में तो उसको हम लिटिक लीजन बोलते हैं। लिटिक लीजन्स एक्सरे के ऊपर, सीटी स्कैन के ऊपर और पेट स्कैन के ऊपर आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन जो फोकल लीजन्स होते हैं उनको हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है। और कई पेशेंट्स को अगर हम सोचते हैं कि वो बॉर्डर लाइन है, शायद अभी ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, तो उनके लिए हम स्पेशली एमआरआई करते हैं देखने के लिए कि बोन मैरो में कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो एबनॉर्मल हैं, और अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो अगला 1.5 साल या 2 साल में ये लिटिक लीजन्स बन जाएंगे। और ऐसा माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट जो होता है, सिर्फ वो होने की वजह से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब लिटिक लीजन होता है जो डिस्ट्रॉय कर देता है बोन को या बोन के अंदर में होल बना देता है, वो तो हर प्रकार की मोडालिटी के ऊपर दिखता है। मोस्ट कॉमन एरिया अगेन बोन में ऐसा होल जो बनता है वो स्पाइनल एरिया या रीढ़ की हड्डी में बनता है, और इस वजह से जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं वो या तो कंप्रेस हो जाते हैं या वो ज्यादा कंप्रेस होंगे तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। और पेशेंट का प्रेजेंटेशन जो होएगा वो हमेशा, अगर रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होती है या कंप्रेस होती है तो सडनली थोड़ी सी एक्टिविटी करने के बाद में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और उन्हें लगता है कि उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सामने आ गई है, क्योंकि एक वर्टिब्रा या तो कंप्रेस हो गई है या कोलैप्स कर गई है। अगर हम उसे छोड़ देंगे और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो जो स्पाइनल उनका जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो उसका शॉर्टनिंग भी हो जाता है और वो सामने की तरफ झुकती है, जिसको हम काइफोसिस कहते हैं। ये सिर्फ पेन और सामने झुकना ही नहीं होता है, अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो जैसे जैसे बोन ब्रेकडाउन होता है तो कैल्शियम भी ज्यादा रिलीज होता है, और कैल्शियम जब हाइपर कैल्सीमिया होता है माइलोमा में, तब आपने ऑलरेडी सुना होगा सब प्रकार के ऑर्गन्स के ऊपर में डैमेज होता है, लेकिन हाइपर कैल्सीमिया बाय इटसेल्फ बोन को और भी डिस्ट्रॉय करती है। तो वो किडनीज को भी डैमेज करती है, वो पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को भी म्यूट करती है, और वो एडिशनली बोन को भी और परेशान करती है। सो अगर बोन में इतना प्रॉब्लम्स हो सकता है तो शुरू से ही डॉक्टर्स बोन की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। जब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी तो हम एक्सरे को गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे और हम स्केलेटल सर्वे करते थे। ये आज अभी भी कई जगहों में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कैन्स नहीं अवेलेबल हैं या कई बार कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स की वजह से एक्सरे आज भी हम गोल्ड स्टैंडर्ड ही मानते हैं। जो एक्सरेस हम करते हैं वो स्कल का एक्सरे होता है, रिब्स का एक्सरे होता है, रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रस का एक्सरे होता है, जो हमारा हिप बोन है या पेल्विक बोन है उसका एक्सरे होता है, और हाथ या पांव जहां पे भी दर्द होता है लॉन्ग बोन्स का भी एक्सरे करते हैं, और लिटिक लीजन्स को देखते हैं। सेंसिटिविटी अगर हमें ज्यादा चाहिए बोन्स की इन्वॉल्वमेंट को पकड़ने के लिए तो सीटी स्कैन इज अ मच बेटर मोडालिटी,
और अभी लो डोज होल बॉडी स्कैन करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी एक्सरे से बेटर होती है पकड़ने के लिए। जब हम फोकल लीजन की बात करते हैं या अर्लीस्ट लीजन की बात करते हैं, उसके लिए एमआरआई स्कैन की जरूरत होती है, क्योंकि एमआरआई एक ऐसी मोडालिटी है जो सेंसिटिव भी है और स्पाइनल कॉर्ड को इवैल्यूएट करने के लिए मेथड ऑफ चॉइस भी है। उसके आगे चल के आजकल पेट स्कैन भी आ गया है, और पेट स्कैन भी एक अच्छी मोडालिटी है डायग्नोसिस के टाइम पे। और ये सिर्फ डायग्नोसिस में ही नहीं, पेशेंट की जर्नी इन माइलोमा में कैसे रहेगी, आगे उनका प्रोग्नोसिस कैसे रहेगा, और उसका रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है ट्रीटमेंट में, मतलब असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्स, तीनों टाइम के लिए पेट स्कैन एक अच्छी मोडालिटी है इन्वेस्टिगेशंस की। हर टाइम सिर्फ बोन्स में ही नई बीमारी होती है, कई बार सॉफ्ट टिश्यूज में भी होती है, जिसे हम एक्स्ट्रा मेड्युलरी डिजीज कहते हैं, जो एक्सरे के ऊपर हम इतनी अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं जितना हम पेट स्कैन के ऊपर पकड़ पाते हैं। और अगर ये एक्स्ट्रा मेड्युलरी बीमारी रहती है तब हमें मालूम होता है कि इनका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी माइलोमा पेशेंट्स का है। तो ये हमें हेल्प करता है टू इवन decide what is the outcome of the patient and to see if any other modality of treatment can make the treatment better for these patients. So हम बोन डिजीज से क्यों इतना घबराते हैं? क्योंकि बोन वीक होएगा तो फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रा में फ्रैक्चर कंप्रेशन होएगा तो प्रेशर हो सकता है, और प्रेशर की वजह से नर्व्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, और नर्व्स के ऊपर इफेक्ट होएगा तो पैरालिसिस भी हो सकता है दोनों लोअर लिम्स में, और ब्लैडर और बावल कंट्रोल जा सकता है। तो ये तो काफी गंभीर बात हो सकती है। जो छोटा सा बोन में होल हुआ था उसकी वजह से पेशेंट को इतना प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसके लिए अलग प्रकार का ट्रीटमेंट का भी जरूरत होता है, एंड इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर बोन प्रॉब्लम्स and what are the treatments available to prevent these problems? अगर तो फ्रैक्चर होता है या बोन पेन होता है और इमीडिएट पेन के लिए तो मेडिसिन्स इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू गिव, इवन बिफोर फाइंडिंग आउट कि बोन के अंदर क्या हुआ है। पेन रिलीफ बिकम्स द नंबर वन थिंग फॉर द पेशेंट। नॉर्मली हम पेशेंट्स को पैरासिटामोल देते हैं अगर माइल्ड पेन है, लेकिन अगर फ्रैक्चर होता है या कंप्रेशन होता है, then we have to build up on the pain management, which includes ibuprofen. It may include opioid drugs, and sometimes even radiation therapy has to be given for immediate pain relief. Second, bone disease और bone के ऊपर जो माइलोमा का इफेक्ट है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए माइलोमा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आजकल जो मेडिसिन हम यूज करते हैं और जिसके बारे में आप पिछले 3 हफ्तों से सुन रहे हैं, विच इंक्लूड्स बोटेजोमेब, इमिड्स, वो सब बोन के ऊपर भी उनकी एक्टिविटी अच्छी रहती है और वो बोन को हील करने में काफी मदद करते हैं। Besides that, we have some drugs which are called supportive or bone modifying treatments, और वो ट्रीटमेंट देने से बोन लॉस जो होता है वो कम हो जाता है माइलोमा में। और ये बोन मॉडिफाइंग एजेंट्स जो है उसमें कई पेशेंट्स को मालूम होएगा वो हर महीने या हर 3 महीने में बिसफॉस्फोनेट्स इंजेक्शंस लेते हैं। पहले हम पैमिड्रोनेट काफी देते थे, आजकल जोल्ड्रोनिक एसिड काफी सालों से अवेलेबल भी है और मोस्ट पेशेंट्स गेट जोल्ड्रोनिक एसिड। ये दोनों जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो जाके उस सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं जहाँ पे बोन डैमेज हो गई है, और वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो मैंने पहले बताया था उनके फंक्शन को बंद करती है, और इस हिसाब से वो और बोन को डैमेज नहीं होने देती है और बोन में हीलिंग चालू हो जाती है। बिसफॉस्फोनेट्स तो बहुत सालों से है, उसका डोज देना भी आसान है, इंट्राविनसली हम देते हैं, महीने में 1 बार ही देते हैं शुरू में, और बाद में हर 3 महीने में 1 बार ही देते हैं। आइडियली जो पेशेंट्स को बिसफॉस्फोनेट्स मिल रहे होते हैं, अगर उनका कंप्लीट रिस्पॉन्स हो जाता है तो 1 साल के बाद भी जल्दी बंद कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में हम फुल रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं उनमें हम 2 साल तक चालू रखते हैं,
और जब भी बोन्स का अच्छा रिस्पॉन्स हो जाता है बंद कर सकते हैं। मैक्सिमम डोजेस हम 24 देना चाहते हैं, उसके बाद में हम बंद करते हैं, क्योंकि कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं होती है। और जब हम बिसफॉस्फोनेट्स के इंजेक्शंस दे रहे होते हैं तो उस वक्त हमें मालूम होता है कि हमें किडनी फंक्शंस के ऊपर अपनी निगरानी रखनी है, कैल्शियम लेवल्स के ऊपर निगरानी रखनी है, और उनके डेंटल हाइजीन के ऊपर, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअसली बिसफॉस्फोनेट्स देते जाते हैं तो कई बारी पेशेंट्स का जॉ जो होता है उसमें नेक्रोसिस हो सकता है। तो इसीलिए जो भी दवाई हम लंबी देते हैं उसको हम केयरफुली दें तो पेशेंट के लिए वो सुविधा की बात होती है। बिसफॉस्फोनेट्स रीनल फंक्शंस जब खराब होते हैं तब हम नहीं दे सकते हैं। उस टाइम के लिए एक और इंजेक्शन अब कई सालों से अवेलेबल है जिसे हम डेनोसुमैब बोलते हैं। ये इंजेक्शन इजीली स्किन के अंडर दे सकते हैं, सेफ भी है पेशेंट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव रीनल कॉम्प्रोमाइज, लेकिन थोड़ा महंगा है तो इसीलिए सोच के देना पड़ता है। लास्टली अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर उसके लिए 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं जो मिनिमली इन्वेजिव होते हैं, बहुत मेजर सर्जरीज नहीं होती हैं। एक प्रोसीजर को हम वर्टेब्रोप्लास्टी बोलते हैं, दूसरे को बलून काइफोप्लास्टी बोलते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो बोन कोलैप्स हो गई है या जो वर्टिब्रा कोलैप्स हो गई है उसके अंदर में हम धीरे से सीमेंट या बलून इन्फ्लेट करते हैं ताकि वो अपने साइज में वापस चले जाए और जो कंप्रेशन है वो रिलीव भी हो जाए, ताकि बैक पेशेंट की स्टेबलाइज हो जाए, पेन कंट्रोल भी हो जाए और आगे दूसरी बोन्स के ऊपर असर कम होए। ये प्रोसीजर सिर्फ तब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जब स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होता है, जब इसका मतलब है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता है, तब ये प्रोसीजर हम नहीं करना चाहते हैं। Finally, before I end, I will like to say that physical activity for all myeloma patients is very important. क्योंकि बोन में पेन होता है, पेन की वजह से हम घूमना फिरना बंद कर देते हैं, हम मोबिलिटी कम हो जाता है, हमारे मसल्स डिसयूज में चले जाते हैं और एक एक करके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपना बैलेंस, स्ट्रेंथ और फिटनेस रखने के लिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ माइलोमा। और ये एक्सरसाइज कितना करना है और कहाँ कितने हद तक कर सकते हैं उसके लिए हमेशा अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से बात करिएगा, क्योंकि हर पेशेंट के बोन का स्ट्रेंथ माइलोमा की वजह से अलग होता है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 6-8 हफ्ते के बाद माइलोमा कंट्रोल हो जाता है, तब बोन्स वापस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और फिर आप अपना रूटीन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। So with that, I will stop and we can have questions after Mrs. Bhavna has presented her journey and when we go on to the panel discussion. Thank you very much. Thank you, Reena ma'am, for your very valuable input on and information on the bone health in myeloma. There are many questions which patients generally do ask, but as you suggested, we will do that after Mrs. Bhavna gives us her experience, her story. So thank you, ma'am, once again. And I invite Mrs. Bhavna Saxena to please share her story with all of us. Good evening, everybody. I'm Bhavna, and firstly, बहुत सॉरी बोलना चाहूंगी, ये बीच में मेरा कुछ माइक्रोफोन में कुछ इशू आ गया था तो I couldn't join on the time. So basically मेरे को मल्टीपल माइलोमा हुआ था and it was 2015 में दिसंबर में मेरे को ट्रांसप्लांट किया गया था। एंड सिम्टम्स के नाम पे मेरे कुछ खास सिम्टम्स नहीं थे, जैसे कि हड्डियों में दर्द वगैरह मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे को राइट हाथ की फिंगर्स में नमनेस हो गया था, ये 3 फिंगर्स में थोड़ा सा ऐसे रफ लगता था। तो मैं अपने आर्मी के हॉस्पिटल में गई एंड दिखाने के लिए, तो डॉक्टर्स ने मेरे को नॉर्मल टेस्ट करे एंड मल्टीविटामिन दिया खाने के लिए एंड बेसिक सारे टेस्ट किए जो नॉर्मल रूटीन चेकअप के होते हैं, वो सब ठीक आए।
मल्टीविटामिन 1 महीना खाने के बाद भी मेरे को कुछ खास फर्क नहीं लगा, तो मैं फिर से अपने डॉक्टर के पास गई एंड डॉक्टर ने बोला कि हम टेस्ट करते हैं। उन्होंने ESR किया, ESR मेरा बढ़ा हुआ आया, तो उनको लगा कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, ESR बढ़ा है तो और आगे फर्दर टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने मेरा प्रोटीन इलेक्ट्रोपोरेसिस टेस्ट किया जिसमें M बैंड बढ़ा हुआ था एंड उसके बाद मुझे हमारे आर्मी के बड़े हॉस्पिटल RNR में रेफर कर दिया। वहां पे डायग्नोस के दौरान पता चला कि मुझे मल्टीपल माइलोमा है। सो कभी भी किसी भी पेशेंट के साथ में कोई भी बड़ी डिजीज आती है सामने तो बहुत ही परेशानी होती है अपने को भी और अपने फैमिली मेंबर्स को भी। तो उसी तरह हम लोग सब बहुत डिस्टर्ब हो गए, मेरे फैमिली मेंबर्स एंड मैं, बच्चे, पेरेंट्स, इन लॉज, सब लोग बहुत ही परेशान हो गए। बट हमने अपना ट्रीटमेंट RNR में कराने का सोचा। तो वहां पे डॉक्टर्स ने मेरा कीमोथेरेपी जनवरी 2015 में शुरू करी एंड बाय अक्टूबर 2015 मेरे को कंप्लीट रिमिशन मिला। उसके बाद उन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट 2015 दिसंबर में प्लान किया और उसके बाद अभी मैं हूँ। एवरी 6 मंथ्स में मेरे रिव्यू होते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा, वो ऑलमोस्ट सब सही चल रहा है। और जैसे मैं अभी आपके सामने बोल पा रही हूँ तो मैं सब पेशेंट्स को जो अभी इस चीज से गुजर रहे हैं उनको एक तसल्ली देना चाहती हूँ कि आप अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखिए, विश्वास रखिए कि सब कुछ सही रहेगा, तो आपका हर चीज हर स्टेज पे इम्प्रूव होता रहेगा। बाकी मैंने अपने साथ क्या किया कि मुझे अपनी डिजीज से लड़ने के लिए एक हौसला मिला। मैंने अपना जिंदगी को जीने का तरीका बदल लिया। मेरे को घूमना बहुत शौक लगता है, घूमने का बहुत शौक है, तो मैंने खूब घूमना शुरू किया। आफ्टर डिजीज से जब हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और मन में जो पॉजिटिव विश्वास होता है, अपने डॉक्टर्स के प्रति पूर्ण विश्वास, और भगवान में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, भगवान जी पे, तो अपने भगवान में भी बहुत विश्वास होना चाहिए। इन सारी चीजों को अगर हम मिलजुल के अपने में मान लेंगे तो हम अपनी कोई भी लड़ाई से जीत सकते हैं। बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू भावना, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और सच कहा आपने कि ऐसे लड़ाई जो मल्टीपल माइलोमा जैसी डिजीज के लिए अगर हमें लड़नी है तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने डॉक्टर पे अटूट विश्वास होना जरूरी है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं हमारे लिए। और अपने आप से भी हम जितना हम स्टडी करें अपने डिजीज को, हम एडुकेट करें अपने आप को, और एक जीना नहीं छोड़ें। जैसे कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ द वे यू हैव, डू द थिंग्स यू वुड विश टू डू इवन otherwise, not that the disease makes it a life to come to a standstill. It shouldn't do that. So continuing to live your life is and if your physical condition allows you, do some kind of a physical exercise. So thank you so much, Bhavna, for sharing your experience with all of us. Now we can invite some questions for Dr. Reena. If anybody would like to ask questions on bone health, anybody can ask. Our panelists are there to answer your questions. Ma'am, there's one common question which many patients keep asking about this is that after multiple myeloma, wherever the lytic lesions are seen in the bones, do those bones completely heal? Do those lytic lesions go away? So the lytic lesions on the X-rays may not completely heal and go away.
But when we do PET scans, we know that the activity of the myeloma heals completely. And so even if you have some lesions left on the X-ray or CT scan, when we do the PET scan, we know that the activity has gone away. And when the activity goes away, we know that the myeloma is not bothering those bones at that point of time. So to say that the bone lesion will heal on the X-ray is not something that we see. Some amount of residue remains, which is a healed bone. And to make out that there is no activity over there is difficult. But when we do a PET scan, we know that that bone is a completely healed bone. Okay, ma'am. Thank you so much. Anybody who would like to ask questions can please unmute themselves and ask questions to ma'am. Or you can write your questions on the chat. प्रवीण जी, आपके पास क्वेश्चंस आए हैं कुछ पेशेंट्स के, तो आप रीड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. Gayatri ji, this is Haan ji. Dilip Mewada. हाँ जी. My question to Dr. Reena Nair is denosumab and zoledonic acid. See, poor patients के लिए डॉक्टर साहब, poor patient के लिए zoledonic acid is the so best to give zoledonic acid, and people who have renal issues, denosumab is given. So, ma'am, what is the effectiveness? हमारे जो patients and caregivers हैं, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा. That's my request. कि why denosumab, why not zoledonic acid, और उनकी effectiveness. Thank you. If you ask me for my personal opinion, definitely there is enough evidence to say denosumab is a good drug and it effectively controls the bone disease. But does it do something which is, tremendously more than bisphosphonates? And to that, my answer is no. And in a country like India, when we practice, and in some of the institutes where we all practice, and for the kind of background of our patients, I think bisphosphonates have done an excellent job over the last more than 25 years. And so we continue to give bisphosphonates as the first line to everybody, except if there is a patient in whom we have renal dysfunction and a lot of bone disease. In those patients, we cannot give bisphosphonates. And so that is one area where we definitely consider. The second thing is, when we started with these bone modifying drugs, we also started using them when the other drugs were not so effective in myeloma therapy, and definitely not in bone disease of myeloma. आजकल जो हमारे पास medicines आ गई हैं, whether it is bortezomib, whether it is lenalidomide, whether it is pomalidomide now or thalidomide earlier, all of these medicines also control the bone disease effectively and much more rapidly than it was earlier. And so since we are using systemic medications which are very good, the modifying agent, whether it is the best and the strongest in the market or the one which you can afford, I don't think there is very much of difference. And so I am still comfortable giving zoledronic acid to most of my patients, very occasional patient in whom we make them spend so much, because either they have renal dysfunction or, there are some people who will say, but I want the best. So of course we then don't change. Oh, thank you, doctors. Thank you very much. That was wonderful and very important, insights that you gave. Thank you very much. Another question is, somebody on the group is asking as to whether calcium supplements should be taken in myeloma, and what is the best painkiller that one can take for bony pain in myeloma? So calcium supplements are in the initial phases a no-no. When we start giving bisphosphonates, it reduces the calcium level. And so we always do a calcium test or a blood test to see the calcium levels before we give the next dose of bisphosphonates. Otherwise, the calcium levels can go dangerously low. And so we have to remember that. And yes, some patients require calcium supplements, and we do give them calcium supplements when they are giving them bisphosphonates. Per se, in myeloma, hypercalcemia, that means increased calcium, is a problem of the disease.
Once the disease is controlled and patient is on long-term bisphosphonate therapy, one has to keep a watch on the calcium levels, and if it is low, have to supplement it as well. The best pain management has always been paracetamol for mild pains. So that is, the least toxic. In myeloma, we know that patients have kidney problems, and so the group of painkillers which are known as NSAIDs is always kind of avoided because they have a direct action on the kidneys and can worsen the kidney functions. So paracetamol is the first best, which, I would say if somebody needs it at home, go ahead, take it. But beyond that, I think your doctor should make an assessment of what is the kind of pain, how intense is the pain, and what is the next treatment that is required. Because just swallowing pills may not be the best thing for a compression fracture or for a fracture elsewhere. And you will require the inputs of either a surgeon or some intervention, or sometimes just immobilization of that particular bone for some time till the mild fracture heals. So I think the pain management beyond paracetamol should be with the treating physician and the group that is treating you, rather than continuously go on increasing to tramadol and then opioids and then put the patches. Those should be in the hands of the medical professionals who can deal better with it. डॉक्टर गायत्री, Thank you. हाँ sir. मैं ऐड करना चाहूंगा कि बिसफॉस्फोनेट्स के ऊपर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, जैसे कि डॉक्टर रीना नायर ने बताया, प्लस बहुत सारे पेशेंट्स को देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंट भी होते हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी कैल्शियम के साथ जो है वो हम सुजेस्ट करते हैं जब भी पेशेंट बिसफॉस्फोनेट्स पे होते हैं. थैंक यू. Thank you, Dr. Pankaj, and thank you, Dr. Reena, for this wonderful information on bone health. And I would like to invite Dr. Srinath Rajgopal. Sir will speak to us about myeloma and the neurology problems which are associated with myeloma treatments. Welcome, sir. Just unmute. Yeah. Am I audible to all now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. At the outset, I would like to thank the organizers for giving me an opportunity to speak among the esteemed panelists who are very senior to me. I am the practicing neurologist at Command Hospital, Air Force, Bangalore. So, मैं अपने talk में neurological complications के बारे में मैं बता रहा हूँ. न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को ब्रॉडली 5 सब कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. एक के बाद एक मैं धीरे धीरे से डील करूंगा. द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन यूजुअली फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन एंड पॉसिबली अ वेरी सिनिस्टर कॉम्प्लिकेशन, मतलब थोड़ा ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन बोलते हैं. स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन से 2 चीज हो सकता है. उससे पैरालिसिस हो सकता है, उससे एक और कंडीशन हो सकता है जिसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं. तो पहले वाला वो है. दूसरे वाला एक होता है जिसको हम हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं ब्रीफली बताऊंगा. देन तीसरी प्रॉब्लम होता है जो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं. एंड फोर्थ प्रॉब्लम है जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं. एंड लास्टली जो है हम बोलते हैं कि अमोनिया रिलेटेड एन्सेफेलोपैथी. एक के बाद एक मैं धीरे धीरे से इसको डील करूंगा. तो द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी not very uncommon, I would say, जो 5% केसेस ऑफ माइलोमा में रिपोर्टेड है, बट एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस में शायद ज्यादा मिलता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन. हमको सब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी चीज है जो ब्रेन की कंटिन्यूएशन है, और जिसके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पूरा अपर लिम्ब, मतलब दोनों हाथ का और दोनों पैर का, और यूरिनरी ब्लैडर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो हमारा जो बोवेल जो होता है, जो इंटेस्टाइन की जो कंट्रोल, जो स्टूल्स का कंट्रोल, इसको कंट्रोल करता है. सो दोनों हाथ, दोनों पैर, यूरिनरी ब्लैडर एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स जो कंट्रोल करता है जो स्पाइनल कॉर्ड है. और स्पाइनल कॉर्ड की जो अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो होता है वो ब्रेन स्टेम हम बोलते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है, जहाँ पे वाइटल स्ट्रक्चर्स का कंट्रोल होता है.
तो जब भी नॉर्मली क्या होता है कि मल्टीपल मायलोमा पेशेंट्स के अलावा नॉर्मल पेशेंट्स को भी थोड़ा बहुत बैक पेन होता है, जैसे हम लोग डॉक्टर्स ने बताया, या जिसको टेबल वर्क जो करते हैं उनको गर्दन में दर्द होता है, बैक पेन होता है। मल्टीपल मायलोमा पेशेंट्स में कोई भी पेन है उसको उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज बोन्स वीक है उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन होके शुरुआत में पेन हो सकता है, बाद में वो पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर वो पैरालिसिस सिम्टम्स आ जाएगा उसके बाद में इलाज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का जो जो एक्चुअल फंक्शनल लेवल पे, जो सेलुलर लेवल पे जो प्रॉब्लम होता है, उसके बाद में रिकवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सर्जरी से भी ज्यादा फायदा शायद ना हो जाए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी पेन हो, स्पेशली जो पेन हो जो नेक से लेके या लोअर बैक से लेके, या तो नेक से हाथ में आ जाए या लोअर बैक में पैर में आ जाए, जो बार बार पेन हो रहा है जिसको हम रेडिकुलर पेन बोलते हैं, या फिर कोई कमजोरी आ जाए जो हाथ में या पैर में है, जो दोनों हाथ में हो या दोनों हाथ दोनों पैर में हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर से इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा, ताकि उससे एमआरआई का स्कैन करना है। एक्सरे में कुछ कुछ पता चल जाएगा, एमआरआई में ज्यादा पता चलेगा कितना कंप्रेशन है, ताकि उसके बारे में हम इलाज कर सकें। Then along with that, whenever such symptoms are there, whenever there is any weakness of upper limb, lower limb, there is a possibility that bladder is also involved. Bladder मतलब जो यूरिन पे कंट्रोल होता है, यूरिनरी कंट्रोल में थोड़ा प्रॉब्लम अगर हो जाए, यूरिन कंट्रोल नहीं है, बार बार यूरिन आ रहा है, या यूरिन आ ही नहीं रहा है, रिटेंशन हो गया जिसमें कैथेटर डालना पड़ा, ये सब केसेस में जो है डॉक्टर्स को डेफिनेटली कंसल्ट करना है उनके ट्रीटिंग डॉक्टर को, और फर्दर इवैल्यूएशन के लिए पॉसिबली न्यूरोलॉजिस्ट का रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि कौन सी लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। तो इसी के साथ साथ जो है स्पाइनल कॉर्ड में रेडिकुलोपैथी हो सकता है। रेडिकुलोपैथी मतलब यूजुअली जो नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से आता है, वो रेडिकल्स की तरह आता है जो अलग अलग रीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो रेडिकुलोपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पेन पेशेंट को पता चलता है कहाँ से कहाँ चल रहा है, उससे पेशेंट जो है जैसे बताएगा डॉक्टर को पता चलेगा, और इवैल्यूएशन करने से कौन सा रेडिकल्स इन्वॉल्व है वो उससे हमारे लिए फायदा होता है, ताकि उस हिसाब से इलाज कर सके। ये हो गया पहले प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनता है, मल्टीपल माइलोमा जो होता है, उसमें सर्टन इम्यूनोग्लोबुलिन जो स्पेशली एमएम इम्यूनोग्लोबुलिन की डिपोजिशन से होता है, उसमें थोड़ा विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, उससे पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, और उसमें हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है। सो व्हेनेवर अनयूजुअल सिम्टम्स अगर है, कंफ्यूजन है, विजुअल सिम्टम्स है, या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स है जो नॉर्मली उनको नहीं हो रहा है, तुरंत जो है मेडिकल असिस्टेंस लेना है, एंड पॉसिबली क्लिनिकल इवैल्यूएशन करना है विजन का, और कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट जो है न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी ऐसे प्रॉब्लम है जो न्यूरोपैथी कई सारे बीमारी में हो सकता है, जो डायबिटीज में न्यूरोपैथी हो सकता है, एज में ज़्यादा एज होने में न्यूरोपैथी हो सकता है, और जैसे कंडीशंस लाइक मल्टीपल माइलोमा और अदर मैलिग्नेंस डिसीजेस में जैसे होता है, कुछ दवाई हम देते हैं कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, उससे भी न्यूरोपैथी हो सकता है। सो न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है, और थोड़ा उसका एवेल्यूएशन डिटेल में करना पड़ता है। सो हमेशा न्यूरोपैथी का सिम्टम्स क्या हो सकता है, दो चीज हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब जो है बर्निंग सेंसेशन या अलग टाइप का सेंसेशन होना, या फिर ऐसे जो है एक जगह से दूसरी जगह से रेडिकुलर पेन होना, ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या हो सकता है कि एक जगह पे नमनेस हो, जैसे सेंसेशन ही नहीं हो। बिना सेंसेशन से क्या होता है कि कई बार उस पर चोट लगेगा पता भी नहीं चलेगा, या फिर गर्म चीज रखने में वो उसमें बॉइल्स बर्न्स जैसे हो जाएगा। तो ये सब नेगेटिव सिम्टम्स है। तो जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव सिम्टम्स होता है, तुरंत उस पर गौर करना चाहिए, एंड the patient has to be evaluated by a doctor, primary treating doctor, subsequently by the person who is treating, and then of course neurological evaluation करना पड़ता है। तो स्मॉल नर्व फाइबर्स, लार्ज नर्व फाइबर्स होता है, तो इसमें कौन सा नर्व फाइबर्स है उस हिसाब से इवैल्यूएशन करके उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, और उसका कारण भी हमको इवैल्यूएशन करना पड़ता है। Then the third problem which is there is the fourth problem which is there is a neurological central nervous system involvement. यूजुअली क्या होता है कि मल्टीपल माइलोमा में जैसे माइलोमा डिपॉजिट्स होता है, बोन्स में होता है, और अगर अदर ऑर्गन्स में होता है, तो ब्रेन में भी हो सकता है। जब ब्रेन में होता है तो ब्रेन में दो चीज हो सकता है। ब्रेन में क्या होता है कि मेनिंजस जो ब्रेन की कवरिंग है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो जिसमें जब इन्वॉल्व होता है तो एक कंडीशन होता है जो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब उसमें क्या होता है कि पेशेंट को फीवर जैसे होगा, पेशेंट का थोड़ा सा सेंसोरियम मतलब उनकी जो होश जो है थोड़ा कम हो जाएगा,
और उसमें हो सकता है कभी कभी सीजर्स भी आ जाए। तो ऐसे कंडीशंस जब होता है, जब इन्वॉल्व होता है, तो हमको ब्रेन की जो CSF करके होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करके, जो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के हम टेस्ट के लिए करते हैं, कई बार करना पड़ता है। कोई और इन्फेक्शन है वो देखना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी कोई हेडेक होता है, जब भी कोई वॉमिटिंग, जिसको हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करते हैं, बिना मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन डायरेक्टली वॉमिट आ जाए, या फिर हेडेक, सीवियर हेडेक फॉलोड बाय preceded by fever followed by some abnormal behavior and मिर्गी जो फिट्स होता है, तो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा एंड इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, जिसमें अगेन ब्रेन का MRI करना होता है। ब्रेन की MRI करके, CT स्कैन MRI करके, देन CSF का इवैल्यूएशन करके उसमें कोई इन्फेक्शन है वो ट्रीट करना है। और उसकी फर्दर जो है पॉसिबल डिपॉजिट्स ऑफ प्लाज्मासाइटोमा डिपॉजिट्स जो होता है, जो ब्रेन में है, वो MRI से पता चलेगा। उसके लिए सेपरेटली जो है, जो भी आपका इलाज हो चल रहा है मल्टीपल मेलोमा का, आपका जो भी हेमाटोलॉजिस्ट है, जो मेलोमा डॉक्टर है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन में पेनेट्रेट करने वाला दवाई भी देनी पड़ेगी। देन लास्टली जो है एनसेफेलोपैथी ड्यू टू अमोनिया। अमोनिया ऐसी चीज है जो बॉडी के अंदर जो है, इट्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिससे जो है लिवर जो है क्लियर करता है। तो कई बार क्या हो जाता है कि इंस्पाइट ऑफ लिवर में जब मल्टीपल मेलोमा डिपॉजिट्स ना भी हो, फिर भी जो इन मल्टीपल मेलोमा केसेस में थोड़ा सा अमोनिया बढ़ सकता है। अमोनिया जब बढ़ेगा, तो जब ब्रेन में क्रॉस करेगा, तो पेशेंट्स का थोड़ा सेंसोरियम जो है, उनकी होश जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। पेशेंट में बिकम ड्राउजी, उनके बिहेवियरल थोड़ा सा अबनॉर्मल होता है। तो उस टाइम पे जब हम ऐसे केसेस में, हम मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस में भी हो सकता है, अगर CSF नॉर्मल है, अगर ब्रेन MRI अगर कुछ खास कोई ज्यादा अबनॉर्मेलिटी नहीं है, तब हम अमोनिया लेवल्स भेजते हैं। तो अमोनिया लेवल्स कम करने का कुछ मेडिसिन होता है। और फिर स्पेसिफिकली जो है, हम कोई भी ऐसे दवाई है जिससे अमोनिया बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकली हम कुछ सीजर्स के लिए, फिट्स के लिए दवाई देते हैं, जिसको हम वैल्प्रोएट बोलते हैं। अगर वैल्प्रोएट चल रहा है तो उससे भी अमोनिया बढ़ सकता है। There are certain other medicines which increase ammonia, certain antibiotics are there, certain other medicines. So we have to carefully look for those medicines, उसको हमको change करना पड़ेगा। So finally to summarize, हमको क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इवन तो उतना कॉमन नहीं है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस सीरियस हो सकता है, लेकिन उसको अर्ली हम अगर डायग्नोस करें, उससे क्विक इलाज हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। सो कोई भी दर्द हो, नेक पेन हो, बैक पेन हो, हाथ में पैर में दर्द हो, इसको तुरंत जो है इवैल्यूएशन करना जरूरी है, ताकि MRI करके कोई भी चीज है, अगर कंप्रेशन है, तुरंत कंप्रेशन रिलीव करने से उनकी जो इरिवर्सिबल प्रॉब्लम को हम अवॉइड प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, बोवेल इन्वॉल्वमेंट प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी के साथ रेडिकुलोपैथी को अप्रोप्रिएटली हम ट्रीट कर सकते हैं। देन बाकी जो है, जो माइलोमा रिलेटेड एंसेफेलोपैथी, माइलोमा रिलेटेड मेनिंगोएंसेफेलाइटिस, और माइलोमा रिलेटेड जो दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो हाइपर विस्कोसिटी, इसको भी अर्ली अगर इलाज हम अर्ली अगर डायग्नोस करें, उससे ट्रीटमेंट से बेनिफिट मिलेगा। Thank you. I'm finished. Thank you, sir. Thank you, Dr. Srinath. So there is one question. Somebody's asked that what are the kind of medications that you can give in peripheral neuropathy symptoms when people have? What are the specific treatments that can be advised for patients with peripheral neuropathy? Yes, ma'am. एक्चुअली पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमको 3-4 क्लासेस की दवाई आते हैं। हमेशा याद रखना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो भी हम दवाई देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नसों को सुन करने के लिए, एक सिंपल हिंदी में अगर हम समझाया जाए तो नसों को सुन करना है, नसों को एक तरह का सुलाने का टाइप का दवाई देते हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस मेडिसिन हम लोग जब देते हैं, उससे थोड़ा सा ड्राउजीनेस पे रहता है पेशेंट्स को, जो ये दवाई देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक गैबा करके, गैमा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड करके एक एंजाइम होता है बॉडी में, जिसके थ्रू एक्ट करता है, तो थोड़ा सा वो सेडेशन होता है। सेडेशन मतलब नींद जैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजुअली नॉरट्रिप्टिलिन करके एक दवाई होता है, सिंपल होता है वो दवाई, हम उससे एमिट्रिप्टिलिन से स्टार्ट करते हैं। हम ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यूरोपैथी, लाइक प्रिगैबैलिन, गाबापेंटिन, ड्यूलॉक्सेटिन, फ्लूऑक्सेटिन, ऐसे हम जा सकते हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जब भी सिम्टम्स, हमेशा न्यूरोपैथी होता है, हमें न्यूरोपैथी का कारण पहले ठीक करना है। जितना भी हम दवाई दे, सिम्टम्स तभी सही होगा जब कारण हम सॉर्ट आउट करें। तो न्यूरोपैथी अगर नर्व कंप्रेशन के वजह से हो रहा है, कंप्रेशन रिलीव करने से न्यूरोपैथी सही हो जाएगा। अगर न्यूरोपैथी मल्टीपल मेलोमा का कोई कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स से हो रहा है, वो दवाई से पॉसिबली अगर ऑल्टरनेटिव अगर है,
तो उससे थोड़ा सा बेटर होगा। सिमिलरली अगर न्यूरोपैथी पेशेंट को, अगर मल्टीपल मायोमा पेशेंट्स को डायबिटीज भी है जो कंट्रोल्ड नहीं, अनकंट्रोल्ड है, उसकी कंट्रोल करने से बेनिफिट हो। अलॉन्ग विद दैट मेडिसिन देना है तो gabapentin, pregabalin, nortriptyline, amitriptyline, duloxetine. These are the common drugs we choose. We start with the lower range like nortriptyline, amitriptyline, and we can go to full doses of duloxetine, which can be 40 mg twice a day तक हम दे सकते हैं। So very often patients complain of crampy pain in the calf muscles. Yeah. So is that also a neuropathic Yes, madam. change? See, cramps, yes, cramps is actually, if you ask me, cramps is one of the features of a anterior horn cell involvement. Cramps usually is suggestive of anterior horn cell. Anterior horn cell जो हम पेशेंट्स को अगर समझाया जाए तो ऐसे चीज है जहां से एक ब्रेन के अंदर से जो हमारा ट्रैक्ट आता है, जो ब्रेन से लेके मसल तक आता है, जो हम एक्शन जो करते हैं उसको हम पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। पिरामिडल ट्रैक्ट में एक अपर हाफ होता है, लोअर हाफ होता है, बीच में एंटीरियर हॉर्न सेल होता है। तो एंटीरियर हॉर्न सेल जब भी इरिटेट होता है तभी क्रैम्प्स हो सकता है, तो जिसमें मसल्स में एक पेन जैसा होगा, अकड़न सी हो जाती है। तो डेफिनेटली cramps, again cramps can be due to various causes. Cramps can be due to dehydration also. Cramps can be due to excessive physical exertion also. Then less food intake also, low sodium also, low potassium also. Then of course in multiple myeloma also it can occur. Cramps के लिए simple painkillers generally कई बार help नहीं करते हैं, तो muscle relaxants sometimes it helps, like muscle relaxants अगर दे चाहे diazepam we can use. Then there are certain medicines like chlorzoxazone we can use. तो अगर उससे फायदा नहीं हुआ तो एक मेडिसिन है जो पार्किंसंस में हम यूज करते हैं, जो प्रामिपेक्सोल हम बोलते हैं, जो डोपामिन एगोनिस्ट है, उसको भी हम यूज करते हैं रेजिस्टेंट क्रैम्प्स में। अगेन ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, क्रैम्प्स किस लिए है, तो वी हैव टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रोलाइट्स, वी हैव टू इवैल्यूएट द पेशेंट्स हाइड्रेशन, वी हैव टू इवैल्यूएट द कंप्लीट इवैल्यूएशन करके कोई भी अगर ट्रीटेबल कॉज है वी हैव टू ट्रीट दैट फर्स्ट। So there is one question by one of the patients here who says that he has cerebral ataxia along with multiple myeloma. So how does he deal with it? He's asking. Madam, it depends on whether that cerebral ataxia, usually madam ataxia है तो we call it cerebellar. Patients may not be knowing the difference. तो cerebellum जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी का बैलेंस कंट्रोल होता है, अगर जैसे ब्रेन के साइड इफेक्ट्स में जैसे बताया प्लाज्मा साइटोमा डिपॉजिट्स अगर सेरेबेलम में हैं तो हो सकता है कि ऐसे अटैक्सिया हो। तो उसमें अगेन मल्टीपल मायलोमा का एक्चुअल थेरेपी जब आप जो मायलोमा स्पेशलिस्ट जो देते हैं उससे डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। अटैक्सिया के लिए एक्चुअली कोई ऐसे स्पेसिफिक दवाई नहीं आता है जिससे उनका बैलेंस ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज और गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आता है, जिसमें आजकल फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स में उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होता है जिसमें वो चला के दिखाते हैं, और उसमें कुछ चीजें होती है जिससे एंटी ग्रेविटी मसल्स, ग्रेविटी मसल्स और गेट की रिलेटेड लेग्स में कैसे वो करना है, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक वॉकिंग वो सिखाते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज ट्रीटमेंट ऑफ द मेन कॉज इज द वन व्हिच एक्चुअली हेल्प्स। Thank you, sir. So there is one question by Mr. Isaac. Mr. Isaac, can you unmute yourself and ask your question? Yes, ma'am. This is Isaac from Secunderabad, sir. So actually, in 2008, I was diagnosed with CADP, chronic inflammatory due to insufficient significance. At that time, I was unable to walk and even holding a cup of chai. So 1.5 years, I suffered for 1.5 years. They told me that there is a damage of myelin sheath on nerves. Because of that, you are suffering from CADP. After that, 2009, it was diagnosed as MM, multiple myeloma. After getting chemotherapy, I was becoming normal. So, is there any chance now, after 14 years, is there any chance of getting CADP again? Yeah, thank you for the question. आपने मुझे एक चीज याद दिलाया बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, में एक चीज बताना भूल गया। एक डिसीज होता है जो पोएम सिंड्रोम करके होता है, POEM करके। उसमें क्या होता है कि न्यूरोपैथी हो सकता है, उसमें जो है ऐसे CIDP जैसे भी हो सकता है जिसमें M बैंड के साथ एसोसिएटेड होता है। तो शायद आप जो बोल रहे हैं वो हो सकता है कि जो CIDP जो आप बोल रहे हैं जिसमें क्या होता है कि नर्व के, आपने जैसे एकदम सही बताया, नर्व के ऊपर एक माइलिन शीथ जैसे होता है, अगर उसका कट हो जाता है जिसको हम डीमेलिनेशन बोल सकते हैं। CIDP में जब हम इवैल्यूएट करते हैं मल्टीपल मायलोमा का टेस्ट हम हमेशा करते हैं
लेकिन आपको जो CIDP शो पहले हुआ था उसका कॉज हो सकता है वो मल्टीपल मायलोमा का वन ऑफ द इनिशियल सिम्टम्स हो। तो अगर आपका मल्टीपल मायलोमा का इलाज अगर मिल चुका है तो चांसेस ऑफ CIDP रिकरेंस इज वेरी वेरी लो। लेकिन अगर उस टाइम पे कोई और कॉज के वजह से हुआ होगा और अभी आपका, क्योंकि अगेन आप मल्टीपल मेलोमा अगर डायग्नोज हो गया, आपका इलाज मिल गया, तो हाईली अनलाइकली, बिकॉज जैसे मैंने बताया न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टीपल माइलोमा उतना कॉमन नहीं है, उतना रेयर भी नहीं। द परसेंटेजेस डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स एज, सिवियरिटी एंड कौन सा स्टेज में उनका इलाज शुरू हुआ है। अगर आपका इलाज अच्छा हो चुका है, अगर आप रिमिशन में हैं, तो चांसेस ऑफ CIDP उतना ज्यादा नहीं होता है। Thank you, sir. Thank you. Dr. Gayatri, can I come in? Dr. Gayatri. Mr. Dilip Kumar, you want to ask some questions? Please go ahead. Yeah. Thank you very much. Pankaj sir, can I talk about the peripheral neuropathy and vitamin K27? हाँ, आप कर लीजिए, आप ब्रीफली बता दीजिए। बट दिलीप जी, थोड़ा सा ऐसा है कि वो आपका एक्सपीरियंस है, साइंटिफिकली आपको यू मस्ट टेल कि कोई क्लियर प्रूफ नहीं है, बट यस, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। Thank you. That's the reason I asked for the permission, and thank you very much for permitting me. Sir, Dr. Srinath and Dr. Reena, I had undergone a trial for an Ayurvedic tablet called vitamin K27 in 2011, and it is on medical papers actually. And since then, it's almost 13 years I've been using this, and in our myeloma group also many people have used vitamin K27, and they have found, majority of them have found very good results basically. So I just wanted to share that, vitamin K27 needs to be researched on peripheral neuropathy, especially in myeloma. Thank you very much. I just wanted to share that. ओके, एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे को मैडम को शायद कुछ पता होगा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। जैसे आपने बताया, we'll have to check. I think definitely some research can be done on this from the possibly bigger institutions. I will share that document with you, the paper with you, Yeah. file document. Thank you. Sure. Thank you. Thank you, Dr. Srinath, for your valuable insights into the neurological complications that can occur with myeloma. I would like to invite Dr. Nishant Jindal, who will speak to us about the renal complications associated with myeloma. Dr. Nishant Jindal, please. Dr. Nishant Jindal, Dr. Naveen की बजाय Dr. Nishant Jindal बोलेंगे. He's also consultant in Tata Memorial. Yes, sir. So good evening. Thank you for having me. So Dr. Naveen could not be there, so I'll just talk briefly about renal problems in multiple myeloma. So अभी तक जो बात हुई है, it's more about bone health and neurological problems जो multiple myeloma के patients को होती हैं. जो एक मेजर प्रॉब्लम कुछ माइलोमा के पेशेंट्स को, सबको ऐसा नहीं होता है, बट अराउंड 20 to 40% ऑफ द पेशेंट्स, 20 से 40% पेशेंट्स को मल्टीपल माइलोमा के कारण असर पड़ सकता है. एंड जिन पेशेंट्स को किडनी का प्रॉब्लम होता है, उनके आगे जाके प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनके आउटकम्स आर नॉट एज गुड एज अदर पेशेंट्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किडनी प्रॉब्लम्स जल्द पकड़ लें और उनको जल्दी ट्रीट कर सकें. सो having said that, it's important to understand कि कुछ पेशेंट्स में, जैसे क्योंकि एज ज्यादा होती है मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स की, उनको किसी और कारण से, जैसे डायबिटीज से, किसी और पुरानी बीमारी के कारण कई बार किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है,
but whether it's because of multiple myeloma or या फिर किसी कारण से किडनी का प्रॉब्लम है, that the doctors can decide. So multiple myeloma, like ma'am had mentioned, is a multi-system disease. उसमें काफी organs body के involve होते हैं. जो multiple myeloma होता है उसमें जो cancerous cell होता है वो plasma cell होता है. जो ये प्लाज्मा सेल हमारे बोन मैरो में इकट्ठा होता है, एक प्रोटीन बनाता है, जैसे पहले बताया इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, साथ में कुछ लाइट चेन प्रोटीन्स होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा लाइट चेन ऐसे किया जाता है. जो ये प्रोटीन्स हैं ये हमारी किडनी में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, और ये डिपॉजिशन के कारण जो किडनीज हैं उनका फंक्शन अफेक्ट हो सकता है, विच इज कॉल्ड रीनल डैमेज बिकॉज ऑफ मल्टीपल माइलोमा. सो ये मोस्ट कॉमन कारण है ऑफ किडनी इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीपल माइलोमा. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनके कारण मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स में किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है. उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कुछ पेशेंट्स जिनको बोन पेन्स होती हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ पेन मेडिसिन, जैसा कि मैम ने पहले बताया था NSAIDs. सो दीज आर पेन मेडिसिन विच कैन कॉज रीनल प्रॉब्लम्स. इनके कारण आपकी किडनी भी अफेक्ट हो सकती है. सो अगर आपको किसी भी कारण से पेन है एंड इफ यू फील दैट यू आर हैविंग बोन पेन्स, काफी समय से चल रही है, सो इट्स बेटर कि एक बार दिखा दिया जाए बिफोर यू कीप टेकिंग पेन मेडिसिन. क्योंकि जब हम केमिस्ट से कोई पेन मेडिसिन लेते हैं, जनरली वो उसी क्लास ऑफ पेन मेडिसिन होती है, NSAIDs, एंड विच कैन अफेक्ट योर किडनी. सो अगर आपको पेन्स हैं, बिफोर यू कीप टेकिंग पेन मेडिसिन, इट्स इंपॉर्टेंट टू सी अ डॉक्टर एंड गेट देयर ओपिनियन. इसके अलावा जो पेशेंट्स को मल्टीपल माइलोमा होता है उनका कैल्शियम लेवल भी बढ़ सकता है, जैसे कि अगेन डॉक्टर रीना नायर हैड एक्सप्लेन. बोन में प्रॉब्लम्स होने के कारण किडनी कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं, और ये कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड कैन आल्सो अफेक्ट द किडनीज. उनके कारण भी किडनीज को डैमेज हो सकता है. मल्टीपल माइलोमा में ये दो इंपॉर्टेंट कारण है किडनी डैमेज का. पेन किलर्स तीसरा कारण है. इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसके कारण किडनी अफेक्ट हो सकती है. कई बार हम जो CT स्कैन करते हैं उसके लिए जो कॉन्ट्रास्ट देते हैं कुछ पेशेंट्स को, उनके कारण भी किडनी पे असर पड़ सकता है, बट दैट्स वेरी अनकॉमन. जो मोस्टली मल्टीपल माइलोमा पेशेंट्स को किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके जो मेन लक्षण होते हैं वो है कि उनका भूख लगनी कम हो जाती है, खाने का मन नहीं करता है, धीरे धीरे वजन कम होता चला जाता है. कुछ पेशेंट्स में मल्टीपल माइलोमा के कारण साथ में बोन पेन्स होने के कारण ये लक्षण इतनी पकड़ में नहीं आते हैं. बट कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं मल्टीपल माइलोमा में जिनके बोन में, हड्डियों में कोई मेजर दर्द नहीं होता है, बट किडनी धीरे धीरे अफेक्ट होती चली जाती है, विच इज आइसोलेटेड रीनल इन्वॉल्वमेंट. और ऐसे पेशेंट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको जल्द पकड़ा जाए, बिकॉज अगर मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट टाइमली शुरू कर दिया जाए तो जो आपकी किडनी पे असर पड़ता है दैट कैन बी रिवर्स, उसको ठीक किया जा सकता है अगर उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए. सो किसी भी मल्टीपल माइलोमा पेशेंट को जब हम देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि उनकी किडनी पे असर पड़ा है या नहीं पड़ा है. दैट्स पार्ट ऑफ द रूटीन एवेलुएशन. जब हम करते हैं उसमें हम किडनी का टेस्ट करते हैं विच इज द क्रिएटिनिन. जो जिनके किडनी पे असर पड़ा होता है उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है. हम यूरिन में देखते हैं कि प्रोटीन है या नहीं. जिन पेशेंट्स की किडनी पे असर पड़ा होता है उनके यूरिन में प्रोटीन दिखने लग जाता है. एक जो फ्री लाइट चेन ऐसे करके टेस्ट, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, बीइंग डन इन मोस्ट माइलोमा पेशेंट्स, वो हमें बताता है कि किडनी डैमेज होने के क्या चांसेस है. जिनकी लाइट चेन्स बहुत ज्यादा होती हैं उनमें किडनी डैमेज का चांस ज्यादा होता है. किसी भी मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट को अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट है, उनका क्रिएटिनिन अगर 2 से ऊपर है या उनके पेशाब में काफी प्रोटीन है, then in most hospitals these patients will be treated on indoor basis. उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट देने की जरूरत रहती है. कुछ केसेस में, कुछ जहां पे क्लैरिटी नहीं है कि ये मल्टीपल माइलोमा के कारण है या किसी और कारण से किडनी पे असर पड़ा है, इन दोज पेशेंट्स किडनी बायोप्सी करनी पड़ सकती है. जिसका मतलब होता है कि जो किडनी है उसमें से एक स्मॉल पीस लिया जाता है टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप कि वो जो किडनी में डैमेज है वो किस कारण से है. उसको किडनी बायोप्सी कहते हैं. अगेन समथिंग दैट द डॉक्टर्स विल डिसाइड वेदर इट्स नीडेड और नॉट नीडेड. मोस्ट पेशेंट्स में जरूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे ट्रीटमेंट
पे इसका impact पड़ सकता है, whether the renal involvement is there or not, and if the doctors are not sure, they'll go for a renal biopsy. जैसा कि मैंने पहले कहा, जिस भी पेशेंट में किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है मल्टीपल मायलोमा में, उनको जनरली शुरू के कुछ दिन या हफ्तों के लिए एडमिट करके ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जब भी किसी को किडनी इन्वॉल्वमेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट ट्रीटमेंट अर्ली। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतना चांस है कि आपका जो किडनी डैमेज है वो रिवर्स किया जा सकता है और आगे जाके आपको लाइफ लॉन्ग किडनी प्रॉब्लम्स नहीं रहें। सो जब भी पेशेंट को एडमिट किया जाएगा, सबसे पहले डॉक्टर्स उनको हाइड्रेट करेंगे, उनका यूरिन आउटपुट देखेंगे, जो भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिन भी चीज़ों की कमी है या जो कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको करेक्ट करेंगे। कई पेशेंट्स जिनका कैल्शियम बढ़ा होता है, उसमें जैसे मैम ने बताया डेनोसुमैब, जो दवाई कैल्शियम लेवल को कम कर देती है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प विद योर रीनल डिस्फंक्शन। जो भी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका किडनी पे असर पड़ता है, उनको बंद करेंगे। और अगर आपकी किडनी की सिचुएशन बहुत खराब है, जैसा कि अगर यूरिन आना कम हो जाता है, जितना पानी शरीर से निकल नहीं पाता है, या जैसे सर ने बताया एनकेफेलोपैथी, अमोनिया लेवल ज्यादा होने के कारण आपके सेंसोरियम पे असर पड़ता है, ऐसे कुछ पेशेंट्स को कई बार डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे केस में अगर डायलिसिस किया जाता है तो वो कुछ समय के लिए किया जाता है, जब तक आपका किडनी का फंक्शन दवाई के कारण ठीक नहीं हो जाता है। जो मल्टीपल माइलोमा का जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, अधिकतर पेशेंट्स का किडनी फंक्शन बेटर हो जाता है। कई पेशेंट्स का पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, बट अधिकतर पेशेंट्स का काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। सो जब पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है किडनी इन्वॉल्वमेंट के लिए, सबसे पहले माइलोमा का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सबने देखा है, वीआरडी, जो बोटेजोमेब, लेनालिडोमाइड, ये सब जो दवाइयां हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन शुरू किया जाता है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको किडनी की जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको देना अवॉइड किया जाता है, बिकॉज किडनी के रास्ते ही ये ड्रग्स यूरिन से बाहर आते हैं, जैसे लेनालिडोमाइड। सो अगर किसी को किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो या तो लेनालिडोमाइड कम डोज पे दिया जाता है, या कोई ऑल्टरनेटिव ड्रग जैसे थैलिडोमाइड दिया जाता है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एडमिट करना रहता है, टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना रहता है। अगर किडनी फंक्शन कुछ ज्यादा खराब है, यूरिन आउटपुट कम है, तो कई बार डायलिसिस करना पड़ता है। अगर कोई भी साथ की प्रॉब्लम है, उसको डील करना पड़ता है। इन पेशेंट्स में, जैसा मैम ने बताया, जोलिड्रोनेट और बाकी बिस्फॉस्फोनेट्स अवॉइड करने पड़ते हैं, बट डेनोसुमैब कैन बी सेफली गिवन। एंड एक बार आपकी जो लाइट चेन्स हैं, जो किडनी की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है, देन यू आर ट्रीटेड लाइक अ रेगुलर माइलोमा पेशेंट, जैसे कि बाकी किसी भी पेशेंट को माइलोमा के लिए ट्रीटमेंट मिलता है। आगे जाके जिन पेशेंट्स को किडनी डैमेज हुआ था, कंप्लीटली रिवर्स पूरी तरह से कई बार नहीं होता, ऑल्दो द पेशेंट फील्स बेटर। सो इन पेशेंट्स में भी आगे जाके ट्रीटमेंट इज एज इफेक्टिव एज एनी अदर मल्टीपल माइलोमा पेशेंट। आगे जाके इन पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट भी सेफली किया जा सकता है। मोस्टली जो पेशेंट्स हैं, उनका किडनी फंक्शन इतना अच्छा हो जाता है कि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती। सो द रीनल रिकवरी, जो हम कहते हैं किडनी का जो रिकवरी है, दैट्स सीन इन ऑलमोस्ट 80% ऑफ पेशेंट्स। अगर 100 मरीजों को किडनी इन्वॉल्वमेंट होगा, उनमें से 80 पेशेंट्स का किडनी फंक्शन रिकवर हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, लाइक दोस 20%, जिनका किडनी फंक्शन कंप्लीटली रिपेयर नहीं होता है, रिकवर नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स में आगे जाके परसिस्टेंट डिसफंक्शन रह सकता है और आगे जाके इनको डायलिसिस की जरूरत रह सकती है, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल मेजॉरिटी। एंड इन मोस्ट पेशेंट्स, अगर ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो जाए, तो मोस्ट पेशेंट्स में किडनी फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। आगे जाके ऐसे पेशेंट्स में अगर डायलिसिस पे रहते हैं, तो आगे जाके बहुत साल बाद, इफ द डिजीज इज इन कंट्रोल, अगर आपकी मल्टीपल माइलोमा की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में है फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years, तो आगे जाके किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोचा जा सकता है। फ्रॉम द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आई फील वन शुड अंडरस्टैंड इज कि किडनी इज वन ऑर्गन। अगर आपकी किडनी पे असर पड़ा है, डोंट वेट, डोंट ट्राई एनीथिंग एल्स, डोंट गो फॉर डिफरेंट ओपिनियंस, start treatment as early as possible, because that's the most important thing जो आपका आउटकम डिसाइड करेगी। जल्दी ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट किया जाए, if you see कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, but you want a different opinion, I don't think it's the best thing to do that. One should start treatment as early as possible. Second thing is,
जब भी किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है काफी डाइट का क्वेश्चन मन में आता है, लाइक व्हाट इज द राइट थिंग टू ईट। जो किडनी इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल माइलोमा में है वो अधिकतर ट्रांजिएंट है, वो ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी के लिए चलेगा। यू विल नीड टू बी एडमिटेड, वहां पे जो भी डाइट आपको रेकमेंड करते हैं वो ली जा सकती है, एंड आगे जाके नॉर्मल डाइट कैन बी टेकन। So that's also not a very big concern. I mean, one should understand that rather than changing your diet and trying to see कि creatinine कम होता है या खुद से ठीक होता है, it's important to get admitted, see a doctor and start treatment as early as possible. Thank you. So I can take questions. अगर कोई questions हैं तो please बताइए. Thank you. Thank you, Thank you, Dr. Dr. Nishant. Yeah, Dr. Gayatri, please go ahead. नहीं सर, पंकज सर प्लीज गो अहेड सर, आप ही बात करिए। हाँ, आप नहीं नहीं पूछिए। आप मॉडरेट कर रहे हैं, आप करते रहिए। वी क्वेश्चंस इनवाइट कर लीजिए एंड देन जी। वी विल। ठीक है सर। Thank you, Dr. Nishant, for your input on the renal features and complications that can occur with multiple myeloma. ज़्यादातर patients जो आते हैं, जैसे support groups में भी questions उनके होते हैं, they feel that once they have some renal problem, it is like, they think it is the ultimate thing. I mean, keep us the disease is at the end stage, but it was nice to hear from you today that many a times with multiple myeloma, the renal features can get reversed once the treatment begins, and it is not that it is a lifelong thing to worry about if it is caught in the early stages. So I would like anybody would like to ask, the patients would like to ask Dr. Nishant or Dr. Reena or Dr. Srinath, Dr. Pankaj, any questions? We have the panel open and people are welcome to ask questions. Please just unmute yourself, raise your hand, and we can take questions. Ma'am, there's certain questions in the chat box. I think someone can answer. There's a question. There are two questions in the chat box which have not been answered. Now, myeloid, yes, sir. So there is one question. A patient has said that he has amyloidosis and he has neurological symptoms along with that. So how does he deal with that pain? Yeah, I think I'll take that, madam. See, again, as I said earlier, amyloidosis can be, it's a complication or it's a sequelae of the main underlying disease. The two things here, one is the treatment of the underlying disease, of course, with whatever options available. And secondly, symptomatic treatment. Again, symptomatic treatment, like as I said, most of these drugs have got a sedative side effects. And a patient who has a weaker bone and who has got some involvement of bone, none of us wants them to have a fall due to giddiness or any gait instability or any drowsiness and then have multiple fractures. So we have to go slow. Again, depending on their symptoms, we can go like from nortriptyline, amitriptyline, we can go and then subsequently combine these drugs together also. We have a combination where amitriptyline, nortriptyline, any one of them with pregabalin or gabapentin, and then add on like duloxetine or fluoxetine. These are the drugs. Again, unless you treat the condition itself, these pains will not subside because the nerve pain are the toughest ones to manage. And most of us, before our subspecialty, we have been physicians. We know that these patients again and again come back. And sometimes you may have to possibly give local injections sometimes, and some short courses of steroids also we can try. So it is very difficult for control of the pain, especially the neuropathic pain of chronic neuropathy with all these underlying conditions. And it's always a clinical challenge for the clinician. So what is the best time to give these drugs? Because most of them cause so much drowsiness that some of the patients say that, if they're advised to take it in the morning and evening, they're sleeping throughout the day. And it's, as you said, it is a cause of worry also, because if they fall, then they can hurt themselves. Absolutely, madam. Yeah. See, it is, we always say that before dinner, if they take, say, suppose most of in our Indian culture, we have dinner around, say, latest by 9 o'clock or between 8 and 9, most of us have. We generally tell them, say, along with the dinner, if they say, if they take, because they don't have any interaction with the food. So even half an hour before dinner, if they take, so the half-life, the duration of effect will last for about, say, 8 to 10 hours. So by the morning, when they get up at, say, 6, 7 o'clock, the effects, whatever the remaining effect of the medicine
or it's whatever absorption would have been completed by now, and then they won't have any of those side effects of the drug. Preferably, Yeah. possibly a little bit before dinner will be ideal. Okay. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, Reena ma'am, one more question. One question for you. A patient has asked कि bone marrow transplant के बाद life बढ़ती है या नहीं? Bone marrow transplant तो निशांत बताएगा, नहीं तो नवीन मेरे को पकड़ेगा. Nishant, you can go ahead. So bone marrow transplant has been a part of myeloma treatment for years. अभी भी काफी, because myeloma के जो अब treatment है, that's much simpler. इतनी कोई major problems आती नहीं है with the drugs. So everybody wants to know whether transplant का फायदा है या नहीं है, because compared to the other treatments, myeloma is transplant is still थोड़ा intensive treatment है, admit होके रहना पड़ता है, and you know it's slightly tough on the pocket also. So अभी तक जो भी हम ट्रांसप्लांट के बारे में जानते हैं, इवन इन द करंट एरा, जब हमारे पास इतनी इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं, मल्टीपल माइलोमा में अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसका फायदा है. अब कितनी लाइफ बढ़ती है ये बताना मुश्किल है, बिकॉज एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, बट ऑन एन एवरेज इफ यू सी, अगर आप मल्टीपल माइलोमा में ट्रांसप्लांट करा जाए तो उससे जो बीमारी कंट्रोल में रहने का समय है वो काफी हद तक बढ़ता है. ऑन एन एवरेज अराउंड 3 to 4 years इज व्हाट वी से कि पेशेंट्स को फायदा होता है. आई हैव सीन पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट 10 साल पहले हुआ था, उनको अभी भी कभी बीमारी वापस नहीं आई है. देयर इज अ गुड परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जिनकी बीमारी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है विद ट्रांसप्लांट. एंड द अदर एडवांटेज ऑफ डूइंग ट्रांसप्लांट इज कि जो आपका दवाइयों का बर्डन है, द मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग, that can come down. So I think it makes sense to do a transplant because इससे एक तो आपका बीमारी कंट्रोल में रहने का ज्यादा समय बढ़ता है, इससे आपकी जो दवाइयां हैं वो कम की जा सकती हैं, एंड कुछ पेशेंट्स में डेफिनेटली काफी साल के लिए बीमारी इस कंट्रोल, यू कॉल इट ऑपरेशनल क्योर, कि नाम के लिए बीमारी खत्म ही हो चुकी है. So that can happen in some patients who undergo transplant. Life on an average kitna बढ़ती है, that's difficult to say, but definitely if you think about it logically, it makes sense to do it. So another question is that what is till what age one can go in for a transplant? So so there's no age cutoff per se. It depends on how fit the patients are. So in our Indian patients, we generally don't go beyond 65. क्योंकि 65 के बियॉन्ड जो वो तेज कीमोथेरेपी है वो टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है. बट हैविंग सेड दैट, इफ देयर इज अ पेशेंट हु इज बियॉन्ड 65 years of age but he is fit, he is able to walk stairs, he walks 4 or 5 kilometers a day, he looks healthy, the kidney, the heart and the lung function is all right, then they can go for a transplant. So in the US, in Western countries, they do transplants up to 75 years of age. हमारे यहाँ generally we don't go beyond 65, but we've seen patients who have tolerated a transplant even after 65. So it depends not on your age, it depends on your fitness more than your age. But yes, you have to be fit to undergo a transplant. That decision I think the doctors can take, but generally 65 is what we see, beyond which we would hesitate to do a transplant. Thank you, Dr. Nishant. I don't see any more questions. Somebody has asked about the cost of BMP in India. Dr. Nishant or anybody would like to? So Nishant will give the least cost and the rest of us will give the most cost. I think, ma'am, the cost is more or less the same. Even in a place like TMH, I think the cost is similar to what we see in private hospitals. So, I mean, I know about our center, I know to a certain extent about PGS. The cost is somewhere between 8 to 10 lakhs. But you know, it depends on kitne complications patients ko hote hain. So I've seen patients who've undergone transplant within in less than 5 lakhs, and kisi ko complications zyada, so it can go beyond 12 lakhs also. So on an average, it's between 8 to 10 lakhs. But and I think that's true for most centers in the country. Yeah. Thank you, Dr. Nishant, Dr. Reena, Dr. Srinath, Dr. Hari, and Dr. Pankaj for all your time, valuable time, and given to this session.
Dr. Pankaj, would you like to say something? So I think this is our last series of Monthly. about creating the awareness about the multiple myeloma in this month. Yes. ये बताया गया कि है मार्च का महीना माइलोमा अवेयरनेस मंथ है और हर मंडे को हमने ये मीटिंग किया है, जिसमें पहली मीटिंग में हमने माइलोमा के बारे में बताया, दूसरी में फिर हमने एमआरडी के बारे में बताया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, तीसरी मीटिंग में सपोर्टिव केयर और चौथी में हमने किडनी के बारे में बताया। बट इसका काफी सारे लोगों ने स्वागत किया है, तो हमने ये सोचा है कि हम इस एक्टिविटी को 3 महीने में एक बार करते रहेंगे और जो नेक्स्ट हम पेशेंट ग्रुप मीटिंग है वो जून के पहले हफ्ते में हमारा प्लान है। 3 जून को सैटरडे है, तो उस दिन हम रखना चाहेंगे, तो जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे इंटरनेशनल जो फैकल्टी है वो भी साथ में जुड़े, डॉक्टर शाजी कुमार, डॉक्टर विंसेंट या डॉक्टर नूपुर राजे, डॉक्टर नूपुर, हाँ डॉक्टर नूपुर, कोई भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी साथ में जुड़े, ताकि पेशेंट्स को ये भी पता यूएसए में जो है वो क्या चीजें हो रही हैं इसके बारे में। तो हम ये एक रेगुलर फीचर रखना चाहेंगे ऑनलाइन भी, और ऑफलाइन जो है वो मिस्टर दिलीप मेवदा जो माइलोमा फ्रेंड चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू जो है वो पूरे इंडिया में आई थिंक मीटिंग कर रहे हैं मिलके। पीजीआई चंडीगढ़ में नेक्स्ट मंडे को मीटिंग रखा हुआ है उन्होंने, और बीच में दिल्ली में और लुधियाना में भी मीटिंग है। तो ये हम कोशिश करते रहेंगे कि मीटिंग हम करते रहें, तो पेशेंट्स ना उनको माइलोमा के बारे में, बीमारी के बारे में ज्यादा पता होगा, उतना ही वो अच्छा हेल्प करेंगे डॉक्टर को डिसीजन लेने में, बिकॉज बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और तो जितना कोई पेशेंट जितना अंडरस्टैंड करता है उतना ही उसके लिए बेटर होता है अबाउट डिसीजन मेकिंग। और एक चीज जैसे पिछली बार डॉक्टर गायत्री ने भी बोला था कि अकेले सिर्फ दवाइयों से मरीज ठीक नहीं होता, दवाइयों के साथ मरीज की अपनी हिम्मत, मरीज का अपना उसकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उसकी एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, उसकी विल पावर है, प्लस जो फैमिली सपोर्ट है, वो भी चीजें हेल्प करती हैं पेशेंट को ठीक होने में। अकेले सिर्फ दवाइयां जो हैं वो काम नहीं करती हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर उदय ज्वाइन किए हैं तो he wanted to make some announcement for helping financially the patients जिनको ट्रांसप्लांट होना है, उनकी कुछ हम थ्रू दी इंडियन माइलोमा एकेडमिक ग्रुप से हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। आई डोंट नो डॉक्टर उदय ने ज्वाइन किया कि नहीं किया है। डॉक्टर उदय ज्वाइन? नहीं, आई डोंट थिंक सो सर, दिख नहीं रहे हैं वो ग्रुप में अभी। So maybe हम जो है वो थ्रू दिस इंडियन माइलोमा एकेडमिक ग्रुप से हम जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट जिनको जो कुछ मदद चाहिए, we will try help them by giving 1 लाख रुपीस। तो ये जो पेशेंट्स बीपीएल के हैं या जो पेशेंट्स का थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन पेशेंट्स के लिए ज्यादा होगा। और इसके अलावा जो माई फ्रेंड चैरिटेबल ट्रस्ट है दिलीप मेवदा जी का और विनीता मेनन जी का, ये भी पुअर पेशेंट्स के लिए मेडिसिन की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और दे आर डेवलपिंग अ मैकेनिज्म जहाँ पे पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन की जो वो हेल्प हो पाए। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप जुड़े रहिए वेबसाइट के साथ और ग्रुप के साथ, ताकि हम आपको इन्फॉर्मेशन माइलोमा के बारे में देते रहें। जो भी नई इन्फॉर्मेशन भी आ रही है उसको भी हम आपको अपडेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच पंकज सर। थैंक यू सो मच सर थैंक यू आज सर। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। टुडे वी वर देयर एट TMH बॉम्बे, तो डॉक्टर Bhau Saheb Bagal and Dr. Manju Sengar has also started a myeloma support group. So this was their first meeting and we were there. तो काफी सारी एक्टिविटीज जो है माइलोमा में हो रही है, तो it is a good sign for everybody. And
together, we can make a very big difference to the myeloma community. Thank you very much, sir. Thank you. And Thank last you, sir. minute, Dr. Gayatri. Yeah, thank you, sir. So can we close the meeting now? Yes, I think Sir, we can close the but ask the all the patients and the other groups की questions जो है ना वो अपने डालते रहें, and we will try to see कि अगर questions का number ज़्यादा होगा, we will try to organize another virtual meeting as early as possible. और अगर 3rd June So को we तो will हम organize करेंगे. 3rd June तो sir before that what we will do is sir जो groups में है ना जो support groups हैं उन पे we will ask the patients for their queries, and then maybe once the queries are there we can organize another virtual meeting and we can address them then. Sure. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank Take you, care. sir. Thank you very Take much. care. Thank you. Thank you. See you soon, sir. Yeah. Thank you. Thank you.